Hello students, in this video we will be talking about India's policies and guidelines on climate change. Actually हम पढ़ेंगे कि climate change की जो requirements हैं उनको fulfill करने के लिए इंडिया किस तरह से कौन कौन से एक्ट्स के थ्रू एफर्ट्स कर रहा है. सो ये 9 कुछ पॉइंट्स हैं इसमें. विल स्टडी द फीचर्स ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स. हमें ये ध्यान है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो नोडल एजेंसी है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनकी. मिनिस्ट्री ने अपने रीजनल ऑफिसेज, बोर्ड्स एंड रिसर्च सेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री बना रखे हैं इसी पर्पस के लिए. और उसमें सबसे पहला जो एक्ट है वो है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. इसका सोल ऑब्जेक्टिव है कंट्री के जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व करना. और फॉरेस्ट प्रिजर्व करने के साथ साथ एक इशू और आता है फॉरेस्ट में, जो उसमें ट्राइब्स रह रही हैं उनका लाइवलीहुड इज डिपेंडेंट ऑन दिस फॉरेस्ट ओनली. सो उसके लिए एक अलग एक्ट बनाया गया 2006, द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006. So with the help of this 2006 act and the 1980 act, the ministry ascertains that sustainable conservation of the forests is done. Sustainable word इसलिए लाना जरूरी है because of these forest dwellers. Next is the Water Act. There are two acts for prevention and control of pollution of water. One is 1974 and another one is 1977. This legislation is to ensure prevention and control of water pollution by establishing central and state pollution control boards. दो बोर्ड्स हैं यहाँ पे. एक है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरा है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. They are specifically responsible for water and air pollution. They monitor, they regulate these two types of pollutions in the country. और इनको empower किया गया है, इन boards को empower किया गया है to regulate the establishment of industries. और and they can specify penalties also. Penalty भी लगा सकते हैं इन industries पे if they don't follow their rules. Secondly, as I said, the Air Pollution Act 1981, ये अलग से इसलिए निकाला गया because Stockholm Conference 1972 के we are one of the signatories which talks about prevention and control of only air pollution. So इसको fulfill, इस obligation को fulfill करने के लिए ये act, the Air Pollution Act निकाला गया. और as we have already talked, CPCP, State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board, they are responsible for air and water pollution. उसके कंट्रोल, प्रिवेंशन, रेगुलेशन, इन सब की जिम्मेदारी इन दोनों के पास है. एंड they are part of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Then we have this Environment Protection Act 1986. So this is this act takes care of specific characteristics of different parts of the country. Say for example, जो राजस्थान है which is a dry land, इसकी requirements अलग हैं. Whereas if you go to Kerala, उसकी requirements अलग है, वहाँ का ecological features अलग है, राजस्थान के ecological features अलग है. So same kind of rules cannot be applied throughout the country. It is necessary that if you are talking of environment which is quite specific to a particular region, we have to modify the laws also as per the specific needs of different parts of the country. So this Environment Protection Act talks about these specific characteristics of various parts of the country. Rules are framed for siting of independent projects. अगर projects कौन सी site पे लगेंगे,
देन कोस्टल रेगुलेशन, जोनिंग, इको सेंसिटिव जोन्स, इन सब का ध्यान रखते हुए एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस है. Then this important act of Wildlife Protection Act 1972. It talks only about wildlife. Wildlife means हम जंगल के जो जंगली जानवर हैं उनकी बात कर रहे हैं. So उनके पोचिंग, स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड, इनको मॉनिटर करता है, इनको प्रिवेंट करता है, रेगुलेट करता है Wildlife Protection Act 1972. And there are stringent punishment if this law is violated. The next one is Biological Diversity Act 2002. आपको ध्यान होगा कि जो कैसे हल्दी का पेटेंट, बासमती का पेटेंट और इस तरह के जो बायोलॉजिकली स्पेसिफिक रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर करीब 10 साल पहले डिस्कशंस हो रहे थे. तो एक ये नेशंस के जो राइट्स हैं to use their own resources and aims, this conservation of biological resources and associated knowledge को इम्पोर्टेंस देने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 1992. तो उसी की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट निकाला और we have established a National Biodiversity Authority also, and it is located in Chennai. Then we have this National Environment Appellate Authority. ये क्या करता है कि अगर restricted areas में हमें इंडस्ट्री लगानी ही है, कुछ डेवलपमेंटल वर्क करना ही है, which is important, which cannot be avoided, then to get environment clearances, the authority has to approach to National Environment Appellate Authority. वहाँ इस तरह की अपील्स को सुना जाता है और then decision is taken whether to carry out such developmental work or not. Another item in this list is National Green Tribunal Bill. So all kinds of hearings are done under this National Green Tribunal Bill. All green laws, regarding green laws, the hearings are done under this. इसके जो benches हैं वो they are circuit based. तो इसका फायदा क्या है कि वो they are always mobile and they hear cases at places beyond their original location. For example, suppose one bench is framed at Jaipur, but then it is mobile. That means it will move throughout Rajasthan or whatever area it has been assigned, and say it may go to Jodhpur also, and there also it may hear the appeals related to green laws. So that way, then some other day it may be in Udaipur, so there it may hear the appeals regarding these green laws. So this is the meaning of that they are mobile in nature. तो इससे फायदा ये है कि सेम बेंच जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया के सारे लॉ अपील्स को इट कैन हियर. द बिल इसके साथ साथ ये फीचर तो है इसका ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल का, इसके साथ साथ एक फीचर और है कि एनीबडी कैन फाइल ए एप्लीकेशन टू गेट ग्रांट और रिलीफ और फिर उसको कंपनसेशन दिया जाएगा. द पॉल्यूटर हैज टू पे एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज द बेसिक फ्रेमवर्क जिसके बेसिस पे ये ट्रिब्यूनल काम करता है. फाइनेंशियल लायबिलिटी अराइज होती है पॉल्यूटर को और वो इसको पे करना पड़ता है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है. अगर ट्रिब्यूनल का कोई डिसीजन नहीं किसी पार्टी को सूट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी दे कैन मेक अपील एंड दैट अपील हैज टू बी मेड इन सुप्रीम कोर्ट. एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है इसका, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी. इसमें क्या है कि अगर see all these environment conservation and everything, in all these we have to keep a rational balance
बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। दो बातें हैं, एक कंजर्वेशन है और एक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट करोगे तो कंजर्वेशन नहीं रहेगा, कंजर्व करोगे तो डेवलपमेंट बंद करना पड़ेगा। सो टू नीड इज देयर हैज टू बी ए रैशनल बैलेंस बिटवीन द टू। सो अब सपोज वी नीड सम, कुछ इस तरह के अनअवॉइडेबल केस आ जाते हैं कि फॉरेस्ट लैंड हमें चाहिए, तो उसके क्या तरीके? उसके तरीके हैं कि या तो इक्वल अमाउंट में फर्टाइल नॉन फॉरेस्ट लैंड दी जाए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो पहला हो गया। अगर वैसी लैंड नहीं अवेलेबल है तो डिग्रेडेड लैंड फॉरेस्ट को दी जा सकती है, ट्वाइस इन द एरिया, ट्वाइस इन द एरिया इक्विवेलेंट अमाउंट की डिग्रेडेड लैंड फॉरेस्ट में मिलाई जा सकती है। और अगर ये भी नहीं पॉसिबल है, ये दूसरा हो गया, ये भी नहीं पॉसिबल है तो उसके फाइनेंशियल एस्टिमेट कर लेते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट एस्टिमेट कर देते हैं, एंड देन दैट कॉस्ट इज डिपॉजिटेड इन ए स्पेशल फंड। इसके लिए स्टैब्लिश की गई है एक अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड एज कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कंपा, एंड इट वाज established in 2004। सो ये फंड, कौन से फंड्स हैं? ये फंड्स आए हैं कि किसी कारण से किसी डेवलपमेंट करने के लिए हमें फॉरेस्ट की लैंड लेनी ही पड़े, तो उसके तीन तरीके हैं। एक, बराबर की फर्टाइल फॉरेस्ट पर्पस के लिए लैंड दे दो, अगर नॉन फर्टाइल डिग्रेडेड लैंड है तो डबल एरिया में दे दो, या फिर उसकी कॉस्ट एस्टिमेट कर लो और उतनी कॉस्ट स्पेशल फंड्स कंपा में डिजाइन कर दो, डिपॉजिट कर दे, देन दैट डेवलपमेंटल वर्क कैन बी कैरिड। सो this is how, with the help of these laws and acts, India fulfills the obligation of climate change or UNFCCC to protect its environment. इस लेक्चर के लिए इतना ही। Thank you for watching.